नमस्कार সকলকে हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को एक क्लियर कट आइडिया और कंसेप्ट होनी बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के बारे में। तो मैं बंगाली एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करूंगी, लेकिन बहुत जल्दी में बातें करूंगी। रात के 10:30 बज चुके हैं। ये वीडियो को मुझे अपलोड भी करनी है और आप लोगों के पास भी पहुंचनी भी है ये वीडियो। तो आज पहले क्या हुई थी नहीं हुई थी कुछ कोई और दिन मैं डिस्कस करूंगी। तो महाशिवरात्रि की वजह से कुछ साउंड आ सकते हैं वीडियो में। मैं सॉरी नहीं कहूँगी क्योंकि हमारी लाइफ द अल्टीमेट पावर गॉड से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड है और मैं मानती हूँ गॉड को सच्चे दिल से और इन फ्यूचर भी मानती रहूँगी, पहले भी मानती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से बातें करने की कोशिश करूँगी और क्लियरली कहने की कोशिश करूँगी एंड हिंदी एंड बंगाली दोनों लैंग्वेज में कहूँगी। ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही काम के वीडियो, बहुत ही हेल्पफुल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि हम सब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स एंड स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एसबी लिटरेचर को और ये वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। आप लोगों के कोई सजेशन कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। প্রচুর পরিমাণে লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিওটাকে শেয়ার করুন কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি। মহাশিবরাত্রির জন্য আশেপাশে মানে আমার বাড়ির পাশে মন্দির আছে এবং আশেপাশে বিভিন্ন মাইকের আওয়াজ আছে এবং সেটা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে কারণ আমাদের মতো এই আলটিমেট পাওয়ার গড, ঈশ্বর, ভগবান, ইউনিভার্স আমাদের চিরন্তন সত্য আমি বিশ্বাস করি এবং সেটার আমাদের মহাশিবরাত্রির উৎসব আছে, চলছে, শুরু হয়েছে। তো শুরু করা যাক আজকের বিষয়বস্তু। রাত্রি অলরেডি 10:30 বেজে গেছে। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ভিডিওটাকে কমপ্লিট করব। হিন্দি এবং বাংলা দুটো ভাষাতেই বলবো, ঝটপট বলবো কিন্তু ক্লিয়ারলি বলবো। তোমরা বারবার ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। तो प्रथम मैं बांग्ला बोलছি, পরে আমি হিন্দিতে বলছি। पहले मैं बंगाली में कहती हूँ, फिर हिंदी में कहती हूँ। এটাই বলার আছে যে ইউজিসি নেট ডিসেম্বর সো 2024টা আমি লিখে আসিনি, তো এখানে লিখে দিচ্ছি 2024। আর রেজাল্ট চলে এসেছিল 2025-এ। তো বিষয় হচ্ছে কাট অফ অ্যান্ড ক্যান্ডিডেটস জানা আমাদের খুব দরকার। এগুলো মাথায় না রাখলে যতটাই পড়াশুনো করা, সিলেবাসকে ফোকাস করা, সিলেবাস কভার করা, পিওয়াইকিউজের দিকে অ্যাটেনশন দেওয়া, রিভিশন করা, সব কিছু পরীক্ষা ক্র্যাক করার জন্য ইম্পর্টেন্ট। এটাও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে আমাদের নজর রাখতেই হবে। আর আমার মনে হয় এই জিনিসটা শুধু প্রিপারেশনের বা এক্সামের লাস্ট মুমেন্টে, এক্সামের 7 দিন আগে 2 দিন আগে দেখলে হবে না। এটা তোমাদেরকে বা আপনাদেরকে বা আমাদেরকে এটা দেখে রাখতে হবে প্রিপারেশনের সময়, শুরুর জার্নিতে যতটাই সিলেবাস নিয়ে আমরা কৌতূহল থাকবো এবং ফোকাসড থাকবো, ঠিক ততটাই এই কাট অফ অ্যাপিয়ারিং ক্যান্ডিডেট এদেরকে নিয়েও আমাদের একটু সিরিয়াস থাকতে হবে এক্সামকে ক্র্যাক করার জন্য। ঠিক আছে, তো শুরু করা যাক। এখানে টোটাল অ্যাপ্লাইং ক্যান্ডিডেটস মানে যারা অ্যাপ্লাই করেছে এইবার ডিসেম্বর 2024 এক্সামের জন্য ইউজিসি নেট 8,49,166 জন ক্যান্ডিডেট। টোটাল অ্যাপিয়ারিং ক্যান্ডিডেটস মানে যারা পরীক্ষায় বসেছে 6,49,495 জন। জিআরএফ পেয়েছে অল ওভার ইন্ডিয়াতে 5,158 জন। নেট পেয়েছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরশিপ পেয়েছে 48,161 জন এবং অনলি পিএইচডি কোয়ালিফাই করেছে 1,14,445 জন। এগুলো জেনে আমাদের কি হবে? অনেক কিছু হবে, ভীষণ দরকার। এরপর থেকে তো আমি এই রিলেটেড প্রতিবার 6 মাস অন্তর অন্তর যে এক্সাম হয় আমি নিয়ে আসবো। কোনো চ্যানেলে আনুক না আনুক, আমি তো আমার মনে হচ্ছে এইভাবে কেউ নিয়ে আসে কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমি তো নিয়ে আসবো কারণ এটা মাথায় রাখা আমাদের খুব দরকার। নেক্সট, বিফোর রেজাল্ট, আফটার রেজাল্ট, কাট অফ, এক্সপেক্টেড কাট অফ আমি কি বলেছিলাম এবং ফাইনাল কাট অফ কি এসেছে, আমার কথার সঙ্গে কতটা মিললো না, সততার সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া এবং এটাকে ক্ল্যারিফাই করা, নিজের শেখা এবং অপরের জন্য শেখানোর জন্য এগিয়ে দেওয়া, এটাই তো মানবিক কাজ, এটাই তো আমাদের মেইন লক্ষ্য হওয়া উচিত, তাই না? তো শুরু করা যাক। এখানে ক্যাটাগরি নেট অ্যান্ড জিআরএফ, এখানেও ক্যাটাগরি নেট অ্যান্ড জিআরএফ। সো আমি যখন এক্সপেকটেশন রেখেছিলাম তখন কিন্তু জেনারেলের বলেছিলাম 60 থেকে 62% মধ্যে থাকতে পারে বা ম্যাক্সিমাম 63% থাকতে পারে নেটের জন্য আর 68 to 70% থাকতে পারে জিআরএফ এর জন্য। তো আমার এক্সপেকটেশনস কিন্তু লেগে গেছে মানে 62 থেকে 63 মধ্যে, মানে 60 থেকে 63 বলেছিলাম তো 62.67, মানে আমি এটা কিন্তু ঠিক বলতে পেরেছি এক্সপেকটেশনস। এবং জিআরএফ এর জন্য 1% ইনক্রিজ হয়ে গেছে, তাই উইদিন ব্র্যাকেটে লিখে রেখেছি। নেক্সট ক্যাটাগরি ইডব্লিউএস, আমি বলেছি 58% নেট হতে পারে কিন্তু এখানে কমে গেছে। আমি যদি ভুল না হয়ে থাকি আমি এটাকে রিচেক করে নেব, কিন্তু যেটা আমি ক্যালকুলেট করে নিয়ে এলাম ইডব্লিউএস 56.67 নেট পেয়েছে আর জিআরএফ আমি 65 এক্সপেক্ট করেছি কিন্তু এটা 3% বেড়ে গেছে, জিআরএফ 68 হয়ে গেছে। তো আমি এখানে বলতে পারবো না যে আমার এক্সপেক্টেশন
এক্সপেকটেশনস বা আমার এক্সপেক্টেড কাট অফ ঠিক ছিল আই কান্ট সে দ্যাট, আমি এটা বলতে পারবো না। নেক্সট ওবিসি বলেছিলাম 56%-এ নেট, সেটা এখানে বেড়ে হয়ে গেছে 57.33, মানে 1.33% বেড়ে গেছে। আর 63 বলেছিলাম আমি জিআরএফ এর জন্য, আর এখানে এটা 67.33, অনেকটাই বেড়ে গেছে, এটা আমার ঠিক হয়নি। নেক্সট এসসি বলেছিলাম 50%-এ নেট, কিন্তু সেটা 53.33, অনেকটাই 3.33% বেড়ে গেছে। আর জিআরএফ বলেছিলাম 58 থেকে 60, তো এখানে জিআরএফ এ চলে এসছে 63.33, তার মানে হচ্ছে এখানেও কিন্তু অনেকটা বেড়ে গেছে। এসটি ক্যাটাগরিতে বলেছিলাম 49-এ নেট, এখানেও 3% বেড়ে গিয়ে 52 হয়েছে। আর এখানে বলেছিলাম 57, সেটাও ওখানে বেড়ে গিয়ে 5% বেড়ে 62.67 হয়ে গেছে। পিডব্লিউডি অনেকগুলো ক্যাটাগরির মধ্যে আমি পিডব্লিউডি HIOB এখানে লিখে নিই, পিডব্লিউডি HIOB এই ক্যাটাগরিতে আমি বলেছি 44 থেকে 45-এ নেট, আর 51 to 52 এর মধ্যে জিআরএফ। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 36.67-এ নেট হয়েছে আর 50%-এ জিআরএফ হয়েছে। আমি কিন্তু তাড়াহুড়োতে নিয়ে এলাম, কিন্তু যথেষ্ট ঠিকঠাকই এনেছি। তারপরেও আমি রিচেক করব পিডব্লিউডির নেট ক্যাটাগরিটা আর ওবিসি না ইডব্লিউএস এর নেট ক্যাটাগরি, বাকিগুলো সব ঠিক আছে, ঠিক আছে, রিচেক করে নিয়ে আসবো। আর হচ্ছে এগুলো কেন নিয়ে এলাম, তার মানে আমার দু একটা ঠিক ছিল, বাদ বাকিগুলো 3%, 6% না 3 থেকে 5% উপর নিচ, 1.5 থেকে 6% উপর নিচ হয়েছে। তো আমি বলতে পারবো না যে এক্স্যাক্ট ছিল, কিন্তু জেনারেলের ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিকই বলেছিলাম। নেক্সট রেজাল্টস আর ইন পার্সেন্টাইল, কেন পার্সেন্টাইলে এসেছে আমি কিন্তু জানি না। তো হচ্ছে আমার এসেছে 182, আর আমার পার্সেন্টেজ হিসেবে হয় 60.66, মানে 60.67%। আর যেটা পার্সেন্টাইল, আমি এটা কেন দিচ্ছি, কারণ ইন ফিউচার তোমাদের হেল্প হবে, যদি রেজাল্ট পার্সেন্টেজে হোক বা পার্সেন্টাইলে হোক, নিজেরা একটা বেসিক আইডিয়া লাগাতে পারবে, যখন আনসার কি মেলাবে, প্রভিশনাল আনসার কি মেলাবে, তারপর ফাইনালি রেজাল্ট এলে তো দেখতেই পারবে, কিন্তু তার আগে একটা বেসিক আইডিয়া হবে এবং তোমরা প্যানিক থেকে বা একটা টেনশন, একটা এক্সাইটমেন্ট থেকে, একটু টেনশন থেকে বেঁচে যাবে। তার জন্য আমি নিয়ে এলাম। সেটা হচ্ছে যে আমার কিন্তু 94.554635 পার্সেন্টাইল এসেছে, এবং যেটা পার্সেন্টেজ হিসেবে পাচ্ছি আমি 60.67%। তাহলে এতটাই কিন্তু ডিফারেন্স থাকছে পার্সেন্টেজ এবং পার্সেন্টাইল এর মধ্যে। এটার ক্যালকুলেশন কিন্তু ডিপেন্ড করছে অ্যাপিয়ারিং ক্যান্ডিডেট অ্যান্ড পারফরমেন্সের উপর ডেফিনেটলি, এবং কাট অফ এবং কোয়েশ্চেন কিরকম হচ্ছে তার উপরে, ঠিক আছে। তার সঙ্গে আমি লিখে নিই কোয়েশ্চেন প্লাস কাট অফ কতটা নিয়ে আসবে, ঠিক আছে, এগুলোর উপর নির্ভর করছে। কোয়েশ্চেন, কাট অফ, অ্যাপিয়ারিং ক্যান্ডিডেট অ্যান্ড পারফরমেন্স, এগুলোর উপর নির্ভর করছে পার্সেন্টাইল অ্যান্ড পার্সেন্টাইলটা স্পেশালি। তো এই হচ্ছে বিষয়বস্তু। এগুলো কেন নিয়ে এলাম, এগুলো খুব দরকার ছিল, এগুলো মাথায় রাখতে হবে, সিলেবাসের মতো এগুলো মাথায় রাখতে হবে। রেখে আমাদের কি করতে হবে, পরবর্তী প্রিপারেশন নিতে হবে, কিভাবে কোন ক্যাটাগরিতে কীরকমভাবে প্রস্তুতি নিলে নেট জিআরএফ পাবো, কাট অফও মাথায় রাখতে হবে, প্রিভিয়াস এক্সপেক্টেডও রাখতে হবে, প্রিভিয়াস ফাইনাল কাট অফও রাখতে হবে, তার সঙ্গে নিজের প্রিপারেশন রাখতে হবে, সাথে তো অবশ্যই পড়াশোনা তো আছে। এই পর্যন্ত এগুলোই হিন্দিতে বলে আজকের ভিডিওটা एंड করছি, তাড়াতাড়ি বলার চেষ্টা করছি, তাও 8 मिनट पार हो गया। मुझे आप लोगों को यही कहनी है कि क्यों मैंने ये वीडियो लेकर आई। ये वीडियो आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो भी है अपकमिंग एग्जाम में अपियर होंगे, जो भी जितने भी कैंडिडेट्स, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ये वीडियो, क्योंकि सिलेबस की तरह ही, पीओक्यूएस की तरह ही, रिविजन की तरह ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को क्लियर करने के लिए, नेट के साथ, जीआरएफ के साथ, पीएचडी के साथ क्लियर करने के लिए। ओके, तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के कट ऑफ एंड कैंडिडेट्स टोटल अप्लाई जो जितने कैंडिडेट किए थे 8,49,166 एंड टोटल अपियरिंग जिन्होंने अप्लाई किया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सभी लोग एग्जाम में नहीं बैठे, एग्जाम में बैठे हुए हैं 6,49,490 कैंडिडेट्स एंड जीआरएफ मिले हैं 5,158 स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स को, और नेट मिले हैं 48,161 कैंडिडेट्स को, एंड पीएचडी के लिए पीएचडी मिले हैं 1,14,445 कैंडिडेट्स को, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने कही थी, उसके साथ फाइनल कट ऑफ क्या हुआ है आफ्टर रिजल्ट, बिफोर रिजल्ट एंड आफ्टर रिजल्ट। और मुझे क्या, सभी लोगों को जिन्होंने भी हमने एक्सपेक्टेशन लगाए थे उसको हम अगर ऐसे सामना करना बहुत जरूरी है। खुद अगर झूठ कहे हो, सही कहे हो, झूठ नहीं मतलब आप गलत कहे हो, यहाँ पे झूठ नहीं कह सकते, झूठ अलग है, गलती
अलग है। तो हमने एक्सपेक्ट किए थे, एक्सपेक्टेशन गलत हो ही सकते हैं, लेकिन जानबूझकर जो कहते हैं उसको हम झूठ कहते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गलत एंड झूठ। तो यहाँ पे मैंने जो एक्सपेक्ट की थी और जो फाइनल, आमना सामना होना बहुत ज़रूरी है। सच के सामना करना सभी के लिए एक ह्यूमैनिटी एंड रियल ह्यूमन बीइंग की काम है कि सच के सामना करे जो भी चीज़ हो। तो यहाँ पे मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थे, मैं यहाँ पे जो एक्सपेक्ट किए थे कैटेगरी वाइज नेट एंड जेआरएफ के लिए और पीएचडी के लिए मैंने नहीं की थी, क्योंकि मैंने पिछले वाला एग्जाम जून 2024 वाला एग्जाम नहीं दिए थे। जो रीनेट हुए थे वो नहीं दिए थे, सीधे ये दिसंबर अटेम्प्ट दिए थे। तो यहाँ पे मैंने जो एक्सपेक्ट किए थे तो लगभग मैं कह सकती हूँ कि जनरल कैटेगरी के लिए वो सही हुए और साथ में पीडब्ल्यू के एक कैटेगरी के लिए सही हुए, लेकिन अदरवाइज बाकी सब 1.5%, 1.5%, 3%, 5% इंक्रीज हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती मैं टू द पॉइंट एक्यूरेटली बोल पाई हूँ। सभी कैटेगरी में नहीं बोल पाई, लेकिन जनरल कैटेगरी में बोल पाई, क्योंकि मैंने कही थी 60 to 63 या फिर 63% हो सकता है। ये 62 से 63 के बीच, मतलब 62.67% में नेट मिले हैं जनरल कैंडिडेट को और 68 से 70% मैंने जेआरएफ के लिए कहा था, लेकिन 1% इंक्रीज हो गए, लेकिन अप्रॉक्स मैंने सही कही थी। और ये पीडब्ल्यूडी के जो H1OB कैंडिडेट है, पीडब्ल्यू के बहुत सारे कैटेगरी है, बहुत सारी कैटेगरी, मुझे ये सारी कैटेगरी के बारे में नहीं पता, लेकिन इन फ्यूचर मैं इस पे पढ़ाई करूंगी और एनालिसिस रिसर्च करके लेकर आऊंगी डेफिनेटली। तो इस वन कैटेगरी के लिए मैंने जेआरएफ के लिए ठीक क्रेडिट एक्सपेक्ट की 51 से 52, ये 50 है, 1% लेस हुए हैं। और बाद और अलग जो कैटेगरी कैंडिडेट्स आप लोगों को मतलब कैटेगरी दिख रहे हैं नेट एंड जेआरएफ के, उसमें मैंने 1.5%, 1.5, 3 एंड 5% इंक्रीज कर दी और मतलब इंक्रीज हो गए, मैं सही नहीं कर पाई, इसीलिए मैं ये सब दिखा रही हूँ और प्लीज आप लोगों को आइडिया देने के लिए दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होना जरूरी है। और ये परसेंटाइल में जब रिजल्ट आते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। मैंने भी कट ऑफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जब नोट खाता को देखकर मुंह ऑरली बोले थे, वर्बली बोले थे, वहां पे मैंने भी कहा थी इस बार परसेंटेज में अब आएंगे आंसर रिजल्ट, क्योंकि वो एक ही शिफ्ट थे, एक ही सब्जेक्ट में एक ही शिफ्ट थे, हर सब्जेक्ट में एक शिफ्ट थे, मतलब एक ही शिफ्ट, इंग्लिश के लिए एक शिफ्ट, हिस्ट्री के लिए एक, कॉमर्स के लिए। लेकिन इस टाइम पे भी परसेंटाइल में रिजल्ट लेकर आ गए एनटीए, लेकिन क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 182 मार्क्स मिले हैं। मैं खुद के नंबर को क्यों शो कर रही हूँ, रिव्यूअर्स के लिए नहीं, मेरी अपना खुद को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए नहीं, इसीलिए क्योंकि परसेंटाइल में जब रिजल्ट आते हैं हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत पैनिक होते हैं, बहुत टेंशन होते हैं, एंग्जाइटी होता है। जब प्रोविजनल आंसर की के बाद प्रोविजनल फाइनल आंसर की आते जाते हैं, तब हमारे बहुत प्रॉब्लम होते हैं, कितने हुए कितने नहीं हुए, क्योंकि परसेंटाइल में हम अज्यूम नहीं कर पाते हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये परसेंटाइल लेकर आई 182, मतलब 60.67% होते हैं। आउट ऑफ 300 में 182 अगर मिलते हैं तो 60.67%, ये तो सभी को पता है कैलकुलेशन, लेकिन परसेंटाइल में ये जो मुझे मिली है 94.554603 परसेंटाइल, जो कि परसेंटेज में मैंने कैलकुलेट कर लेकर आई हूँ 60.67%, 60.67%, ठीक है ना। तो ये 60.67% मुझे मिली है, 94.55 ये परसेंटाइल मिली है। इसको दिमाग में रखो, आने वाले अटेम्प्ट में प्रिपेयर हो जाना, इसको दिमाग में रखना, तो आप लोगों को पता चल जाएंगे 97 परसेंटाइल और 96 परसेंटाइल है तो कितने हो सकते हैं परसेंटेज में, ऐसे ही 99 परसेंटाइल कितने हो सकते हैं, 100 परसेंटाइल कितने हो सकते हैं, ऐसे। और ये परसेंटेज को तो हम मार्क्स, जो मार्क्स हमने गदर के डिवाइडेड बाय 300 into 100 कर देंगे तो परसेंटेज मिल जाते हैं, लेकिन परसेंटाइल में बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या चाहिए परसेंटेज में, आपके क्वेश्चन कैसे हुए, कट ऑफ क्या है, अपीयरिंग कैंडिडेट एंड परफॉर्मेंस, इन चार तो स्पेशली इन सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं परसेंटाइल में कितने होंगे कैंडिडेट के परसेंटाइल कैटेगरी वाइज रिजल्ट्स, ओके। और मेरी जेआरएफ छूट गई 2.66% में, ये मेरी जेआरएफ छूट गई और ये नहीं हो पाए, रिजेक्ट हो गए। कितने मार्क्स मेरी 2.66% से मेरे जेआरएफ इस टाइम रह गए, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने ये वीडियो क्यों लेकर आई, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखो। और मैं पीडब्ल्यूडी के जो नेट के कैटेगरी मतलब नेट के जो परसेंटेज इसको और ईडब्ल्यूएस के जो नेट के परसेंटेज है इसको रीचेक करूंगी, ये दो चीज़ को रीचेक करूंगी। बाकी जो चीज़ है, बाकी जो कैटेगरी एंड नेट एंड जेआरएफ के परसेंटेज मैंने बताया यहाँ पे फाइनल वाला और
एक्सपेक्टेशंस वाला ये सभी ठीक है, लेकिन मैं 2 चीज़ रीचेक करूंगी। मुझे थोड़ी डाउट हो रही है, लेकिन मुझे लग रही है कि मैंने ठीक ठाक जल्दबाजी में गलती अगर कर दी तो मैंने रीचेक करूंगी हर चीज़ों को। अगर जो 2 मुझे स्पेशली लग रहा है मैं गलती गलत कर सकती हूँ तो उसको रीचेक अच्छे से करूंगी। अगर गलती कर दी तो मैं फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ओके। और नहीं की तो तब इन्फॉर्म नहीं करूंगी, ओके। सो ये क्यों बताई, ये बताना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में न्यू कैंडिडेट हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, जो भी हो, ये दिमाग में रख के प्रिपेयर होना तो ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम को क्रैक करने में, जीआरएफ निकलने में, कैटेगरी वाइज, ओके, एग्जाम को क्लियर करने में। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे कनेक्टेड टू एसबी लिटरेचर, प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। स्टे कनेक्टेड टू एसबी लिटरेचर। थैंक यू, टेक केयर।